Hello students, welcome to the video lecture on the magnetic effect of current. In a earlier 7 videos we complete the theory part of all the topics in the magnetic effect of current, and in this video lecture we are going to discuss about the important numericals on the concepts of this topic. The numericals on the topic that charged particle experience the force when it is passes through the electric and magnetic field, and two parallel current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences the force, and the numericals related to the moving coil galvanometer. This is all about the today's discussion. So before starting the actual numerical part, we discuss just we recap the formulas which are related to this unit. So this what is the Lorentz force? The Lorentz force in an electric and magnetic field. When charged particle in a electric field, it experiences that force equal to Q into E. That force experienced by the charged particle in a electric field, F is equal to Q into E. If it is a positive charge, it move in the direction of electric field. If it is a negative, it move opposite to the direction of electric field. And in a magnetic field, this is the electric, or this is in a magnetic field, it experiences the force equal to BQV sine of a theta. And this theta is the angle between the velocity and magnetic field. When velocity and magnetic field, it is a maximum force, the theta equal to 90 degree, then magnetic field, that is force in a magnetic field equal to BQV. Or when electric and magnetic field both are perpendicular to each other, अगर ये दोनों field perpendicular है, so net force F net force in a electric and magnetic field equal to total of a electric plus this is the magnetic field, or this we can write QE plus this is the BQV. So this is the net force of a charged particle in a magnetic field. Force on the current carrying conductor in a magnetic field. When current carrying conductor length L placed in a magnetic field, it experiences the force, and that force experienced by current carrying conductor is equal to I L B sine of a theta. I is the current, L is the length of the conductor, and B is the magnetic field. And direction of this force experienced by the conductor according to this according to Fleming left hand rule. This is the Fleming left hand rule. And force on the parallel current carrying conductors, when two conductors are parallel to each other and they are carrying the current I1 and I2 and separated by a distance r, then they experience the force F equal to mu 0 I1 I2 divided by this 2 pi r I into L. If the force they are carrying the current in the same direction, there will be attractive force. If force in a opposite direction of this parallel current carrying conductor, there will be a repulsive when current in a opposite direction current in a opposite direction. And attractive, they will attract with the attractive when current in same direction. अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर. Then moving coil galvanometer theory. In this theory of the galvanometer, the deflecting torque N I A
B sine of theta equal to restoring torque or equal to K alpha. Here this magnetic field is a radial, means plane of the coil perpendicular to the plane of the coil and magnetic field, they make the angle equal to 90 degree. So this equal to NIA B sine of 90 is a 1 and K alpha. So I equal to K or NIA, this is the B, NIA B into the alpha, and this known as a galvanometer constant. So G into alpha. In this case, the galvanometer constant that depends on the number of turns, current, area of the coil, magnetic field, and this is the torsion constant. Then conversion, how this galvanometer is a convert into the ammeter and voltmeter. For the conversion of the galvanometer, ammeter into the voltmeter. So galvanometer when connected in a when the parallel resistance connected to the galvanometer which having a very small value, this known as a shunt resistance. When it connected parallel to the galvanometer, then when current I is passes through, total current is a I, and current passes through the galvanometer is a Ig, then current passes through the shunt resistance is a I minus Ig. So both these galvanometer and shunt resistance parallel, the potential is equal. The potential matlab current into the resistance. The potential across the galvanometer equal to current into the resistance is a G, equal to the shunt resistance का कितना current है, तो this is the I minus Ig, और उसका value of the shunt resistance S. So S is equal to Ig, I, this is a suffix G divided by I minus Ig, or into this is the G, this is shunt resistance. Or in a when galvanometer is connected, high value of the series resistance, it converts into the voltmeter, and high value of the resistance, this is the resistance of galvanometer, current is I, the same current passes through the galvanometer and resistance because they are in series. So this is a potential V equal to current I, और resistance is a G plus R, this is total resistance, और current कौन सा है IG, which give the galvanometer full scale deflection, ये V minus this is IG equal to G plus R, और R equal to V minus IG divided by G. So these are the all the formulas are required for the calculation purpose of this numericals. Okay, let us start the first numerical. This numerical I given in the video lecture, and some hint also given, but nobody was responsive to whether you are able to attend or not. Now again I am explaining the same thing. The figure shows the two current carrying wires A and 1 and 2. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the point P, Q and R. ये P, Q, R पॉइंट पर क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड. अगर इसको देखेंगे तो यहाँ ये P पॉइंट पे करना है. बड़ा ध्यान से देखो, अगर करंट डायरेक्शन इज अपवर्ड, अगर करंट डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है, तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब, इट इज ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस साइड में इनवर्ड रहेगा, इस साइड में आउटवर्ड रहेगा. वो जो B1 एट द पॉइंट, दिस इज ए P, एट पॉइंट P,
जो फर्स्ट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट साइड रहेगा, कैसा रहेगा, आउटवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सेकंड कंडक्टर का करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इट इज ए इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो करंट passes it is in a anti clockwise direction। ये साइड में इनवर्ड होगा तो यहाँ इस साइड में क्या रहेगा, आउटवर्ड। तो ये साइड का, इस साइड पी पॉइंट कहाँ है, इट इज अ लेफ्ट ऑफ दिस कंडक्टर। सो ये अगर पी पॉइंट की बात करेंगे तो सेकंड कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड। मतलब फर्स्ट समझ में नहीं आया तो ठीक से सोचो, तो ये फर्स्ट कंडक्टर है, उसका डायरेक्शन ऑफ द कंडक्ट करंट अपवर्ड है, तो क्या रहेगा देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, ये जो राइट साइड ऑफ दिस कंडक्टर, this is the right side of the conductor, it is a inward, and this is the left side of the conductor, it is a outward. P point is the left side of this conductor. The second conductor, the magnetic field is produced in a concentric circles around this conductor, and according to right hand thumb rule, it is a outward for this point, कंडक्टर 2A है, यहाँ क्या आएगा, आउटवर्ड, और इस साइड में क्या होता है, यहाँ होता है इनवर्ड। और फर्स्ट कंडक्टर के लिए यहाँ इनवर्ड और यहाँ क्या रहेगा, आउटवर्ड, इसीलिए लिखा है मैंने, देखो देखिए। अब इस पॉइंट पर जो पॉइंट P है, एट पॉइंट P फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड, और सेकंड आउटवर्ड, एंड सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड। तो दो फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट एट B, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट B इक्वल टू क्या आएगा, B1 माइनस B2, टू अपोजिट फील्ड्स। तो B1 कितना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर हमें पता है म्यू 0 I डिवाइड बाई 2 पाई into R. So this is the resultant magnetic field at this point. At this point mu 0 I divide by 2 pi R. अगर फर्स्ट कंडक्टर के बारे में सोचेंगे तो यहाँ I1 इससे करंट जाता है, और ये जो डिस्टेंस है हम बोलेंगे ये R1 है। मतलब इस कंडक्टर से वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, R कितना है, ये R1 हो गया यहाँ से यहाँ। और दूसरा कंडक्टर यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है, तो माइनस म्यू 0 डिवाइड बाई 2 पाई, करंट कितना जा रहा है इसका, I2, और डिस्टेंस कितना है, R2। इसमें देखो अभी यहाँ मिला, सो B इक्वल टू B1 माइनस B2, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ म्यू 0 2 पाई I1 R1 माइनस म्यू 0 2 पाई I2 और R2। इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ म्यू 0 डिवाइड बाई 2 पाई, बराबर है, यस। I1 कितना है, यहाँ I1 का वैल्यू लिखते हैं, I1 कितना है 20, I2 कितना है 20 एम्पियर है, R कितना है 10 क्या है सेंटीमीटर, मीटर करेंगे 10⁻⁻² आएगा, माइनस म्यू 0 2 पाई बाहर लिया, कॉमन लिया, I2 कितना है 30, और R2 कितना है, यहाँ से ये 10 प्लस 10 मतलब कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। सो दिस इक्वल टू 30 इंटू 10⁻²। और म्यू 0 का वैल्यू कितना होता है, दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ 20, और ये अगर देखेंगे तो दिस विल बी है 0.1, दिस विल है 0.1, बराबर है, माइनस ये कितना आएगा 30, यहाँ देखेंगे तो 2 डेसिमल शिफ्ट करना है हमें, तो ये आएगा 0.3। इसको डिवाइड करो तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁷, और ये आएगा 200 डिवाइड बाई 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 3, एक डेसिमल शिफ्ट किया तो यहाँ 0 रखा, और इससे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ एंड द ब्रैकेट, ये 200 माइनस 3 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 100
तो दिस इक्वल टू ये 200 माइनस 100 ये कितना हो जाएगा 100. सो दिस इज ए 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 इंटू 100. तो ये होगा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 टेस्ला. अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P तो P पर इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 टेस्ला. ये समझ में आया होगा. लेकिन इसका डायरेक्शन क्या रहेगा. अब देखो द डायरेक्शन इज जैसे B1 कैसा है. B1 इज ए आउटवर्ड. B2 कैसा है इनवर्ड. तो सबसे नजदीक किसका वैल्यू ज्यादा है. जैसे B1 इज ए ग्रेटर देन B2. तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ए इन द डायरेक्शन ऑफ कहाँ रहेगा. इट इज ए B1. इन ए डायरेक्शन ऑफ B1 के डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट रहेगा. मतलब कैसा रहेगा आउटवर्ड. अब पॉइंट Q के बारे में सोचते हैं. यह Q पॉइंट है. इसका राइट साइड में Q पॉइंट किसके फर्स्ट कंडक्टर के राइट साइड और सेकंड कंडक्टर का लेफ्ट साइड. मैंने यहाँ लिख के रखा है फर्स्ट कंडक्टर का राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इनवर्ड और इसका लेफ्ट साइड में इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इनवर्ड. दोनों फील्ड इनवर्ड है. तो एट पॉइंट Q both the fields are inward. So B is equal to B1 plus B2. B1 plus B2. So B is equal to क्या लिखो बोलो μ0 डिवाइड बाई 2 पाई I1 R1 प्लस μ0 डिवाइड बाई 2 पाई I2 R2. कॉमन ले लिया मैंने μ0 डिवाइड बाई 2 पाई और R1 एंड R2 सेम है क्योंकि इक्वल है. तो ये भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन हम नहीं लेंगे. चलो यहाँ 20 डिवाइड बाई कितना लिखो 0.1 प्लस 30 डिवाइड बाई ये भी कितना है 0.1. सिंप्लीफाई करो तो रिजल्टेंट क्या आएगा. दोनों इनवर्ड है तो रिजल्टेंट इज आल्सो इनवर्ड. तो ये सिंप्लीफाई करो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा. यहाँ देखो राइट साइड में R पॉइंट का है राइट साइड ऑफ द सेकंड कंडक्टर एंड राइट साइड ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर. दोनों कंडक्टर से राइट साइड. तो राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा है इनवर्ड है. इनवर्ड किसकी वजह से फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर का कैसा है आउटवर्ड. अगेन दो फील्ड क्या है आउटवर्ड. तो दो फील्ड इक्वल नॉट इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में. तो रिजल्टेंट क्या लिखना है यहाँ बोलो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1. तो यहाँ बिगर फील्ड कौन सा है B2. तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आएगा ये द डायरेक्शन ऑफ B2. सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर मिल जाएगा. जैसे पहला केस है इसी तरीके से इसका वो इनवर्ड वो क्या आया था इसका आया था आउटवर्ड आया था. लेकिन यहाँ फील्ड कहाँ से है आउटवर्ड आता है और यहाँ भी आउटवर्ड ये भी आउटवर्ड आएगा. तो इसके बारे में सोचो और ये क्वेश्चन कर लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका आसान क्वेश्चन बन गया है. अभी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए this Q is equal to 0.5 microcoulomb is moving with the speed. This is the positive charge or moving with the speed 2 into 10 raised to 6 meter per second along the x axis. कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है x axis में जा रहा है. और the magnetic field B, this magnetic field B is equal to 0.2J plus 0.4 K Tesla acts in the space. Find the magnetic force acting on the charge. Okay, the magnetic force Fm this equal to BQV sin of a theta. अब यह मूविंग चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस. अभी एक एक्स एक्सिस में जा रहा है. यहाँ B कहाँ है इट इज ए K एंड J एंड K. J मतलब क्या है y एक्सिस और ये क्या है K मतलब Z एक्सिस. जहाँ YZ प्लेन है वहाँ वो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि ये दिखाता है Y यह दिखाता है K मतलब Z. सो YZ प्लेन में B है
और x कहाँ है? x is this velocity of charged particle along the x axis, मतलब एंगल बिटवीन जेम इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री. सो दिस एफ एम दिस इक्वल टू बी कितना हो गया और क्यू कितना, चार्ज मैंने लिखा है यहाँ, चार्ज इज ए 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम, मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, 10⁻⁻6 कुलम वो वैल्यू आएगा. उसके बाद ये किसका वैल्यू, ये Q का. उसके बाद V का वैल्यू लिखते हैं यहाँ, ये V का कितना आएगा, V इज 2 इंटू 10⁻6 और ये आएगा I, क्योंकि ये x डायरेक्शन में जाता है. एक x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, I कैप या I लिखो चलेगा. देन व्हाट इज द B is the magnetic field. This is the 0.2J plus 0.4K. ओके इतना, और साइन थीटा दिस इज 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. 1.5 इंटू 2 आएगा 3 इंटू 10⁻6 और 10⁻⁻6 प्लस 10⁻6 इन द ब्रैकेट 0.2. यह क्या आएगा, I क्रॉस J आएगा, यहाँ क्या आएगा I क्रॉस J, और प्लस ये दिस इज 0.4 K क्रॉस I आएगा, यहाँ K क्रॉस I, एंड दिस वैल्यू इज 1, साइन 90 इज 1. तो ये दोनों का बन जाएगा 3. और इसके अंदर देखो, अगर वेक्टर तुम लोगों ने 11th क्लास में ठीक से पढ़ा तो ये ध्यान रखो, I, ये J और दिस इज K, ये ऑर्डर में जाएंगे, ये ऑर्डर में जाएंगे, कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो I क्रॉस J क्या होता है, K. उसके बाद I क्रॉस इसका लिखेंगे हम K, और K क्रॉस I इक्वल टू होता है J, लेकिन यहाँ K क्रॉस I है. ओके, I क्रॉस J, और यहाँ गलत लिखा मैंने, दिस इज I क्रॉस K है, I क्रॉस K. तो K क्रॉस I J होता है, उल्टा करो I क्रॉस क्या हो जाएगा K, तो ये आएगा -J. समझ में आया ये? तो ओके, दिस वैल्यू आई विल राइट हियर. सो दिस इज द 0.2 I क्रॉस J कितना होता है K, और दिस इज द 0.4 J, और ये माइनस वैल्यू आ गया क्योंकि ये J क्रॉस है. तो इसको लिखेंगे 0.6 K यूनिट वेक्टर माइनस 4 3 4 जा 1.2 आएगा J क्रॉस. This is the force experience. This is the force experience value of the, find the magnitude of the force on the charge. This is the magnitude of force on the charge. चलिए समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक कॉपर हैज ए 8 into 10⁻28 n is equal to 8 into 10⁻28 electrons per cubic meter, मतलब this is density of electron, and copper wire length L equal to 1 meter, cross sectional area A equal to 8 into 10⁻⁻6 is carrying the current and lying in the right angle to the magnetic field, theta equal to 90 degree, and magnetic field, this is a B is a strength of them 5 into 10⁻³ Tesla, and experiences the force equal to 8 into 10⁻² Newton. Calculate the velocity of the free electron. Okay, this is the आसान easy question. F is equal to क्या आएगा, VQV, और F equal to, ओके देन हमें निकालना है V इज इक्वल टू F डिवाइड बाई B इंटू Q. अब यहाँ B है F है, लेकिन Q हमें निकालना पड़ेगा. टोटल मतलब टोटल चार्ज. ये कंडक्टर है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, ये सब कंडक्टर है. तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, तो ये कितना कितना चार्ज है, n चार्जेस है, एक का चार्ज कितना है, E है, इंटू क्या लिखेंगे हम इसका, वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, राइट। तो एन ई वॉल्यूम क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दिया और लेंथ दिया इसका, ये सिलेंडर, ये एल, ये हो गया टोटल चार्ज। चलो चार्ज निकालते हैं पहले इसका। तो चार्ज डेंसिटी एन दिया है 8 इंटू 10⁻²8, एक का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 8 इंटू 10⁻6, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, एक ही यूनिट में है, और लेंथ इज ए 1 मीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 1.6 मैं लिख रहा हूँ इसको, इंटू 8 इंटू 10⁻28 माइनस ये 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, और फिर ये 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻28, मतलब ये हो गया 10⁻+3, ये हो गया टोटल चार्ज Q इक्वल। अब क्या करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी V इक्वल टू F कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, राइट है, चेक करो, हाँ बराबर है। देन क्या निकालना है, क्या रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज 64 इंटू 1.6 इंटू 10⁻3, ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा चार्ज, और क्या बचा मैग्नेटिक फील्ड इंटू बी, इंटू बी का वैल्यू कितना है, देखो इसमें 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ देखो ये 3 -3 +3 चला जाएगा, और 8 8 इज 64, तो टर्म्स क्या क्या बचा है ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं। दिस इज द 10⁻⁻2 डिवाइड बाई क्या बचा है यहाँ 8 इंटू 1.6 इंटू ये 5 इंटू 5, ये इतना वैल्यूज बचा है, दिस इक्वल टू, सो वेलोसिटी, द वेलोसिटी इक्वल टू, अगर इसको मैं दो यहाँ जीरोज लेता हूँ तो यह 100 हो जाएगा, दिस इज द 10⁻⁻4, और ये जो वैल्यू है इसके ऊपर मैं और एक जीरो रखूँगा तो ये आएगा 8 इंटू 16 इंटू 5, ये डेसिमल शिफ्ट किया और एक जीरो रखे इसके ऊपर। अब इसको आसान हो गया, इसको डिवाइड करो 5 ये 2, और ये 200 हो जाएगा, और ये 200 और डिवाइड बाई 8 इंटू 16, 200 डिवाइड बाई 8 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर सीधा आता है 1.56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ये भी एक आसान क्वेश्चन था, ये बोर्ड में पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ अगर तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम क्या करेंगे, इसको सेटिंग में जाकर या इसका क्वालिटी में जाकर थोड़ा 140 पर के वजह से 360 या 480 क्वालिटी में देखेंगे तो ये लिखा जो है वो क्लियर दिखेगा, ब्लर्ड इमेज तुम्हें नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, मैंने इसमें कहीं साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाया क्योंकि इस बार साइक्लोट्रॉन हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अभी जो 30% सिलेबस निकाला उसका नाम, वो भी एक आर्टिकल इस यूनिट से साइक्लोट्रॉन को निकाल दिया, लेकिन तो भी मैंने इसमें ये क्वेश्चन लिया है उसके रिलेटेड, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली ये पार्ट साइक्लोट्रॉन में इंक्लूड है कि नहीं, तो इसीलिए थोड़ा मैंने डाउटफुल था तो इसीलिए पढ़ा दिया इसको, और उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सिलेक्ट किया है। what is the radius of a what is the radius of the path of the electron of mass of the electron m equal to 9 into 10⁻31
दिस इज इन ए kg, एक पर टर्म मिला। चार्ज की इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया दूसरा टर्म। और तीसरा मूविंग विद द स्पीड, कितना स्पीड से जा रहा है, 3 इंटू 10⁻7, 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड से जा रहा है स्पीड से इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू ये, इसको क्या वेलोसिटी का ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट द एनर्जी इन ए किलो electron volt, 1 kilo electron equal to this is the joule. Okay, this is the NCERT question, we can do it. The when radius of the charged particle, जब ये मैंने लॉरेंज फोर्स पढ़ाया और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल गोल घूमता है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री। यहाँ भी मेंशन किया कि इट इज़ अ 90 डिग्री, तो इसीलिए हम वहाँ लिखेंगे। इसका थ्योरी लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें थ्योरी पार्ट इसमें लिखेंगे तो समझने में आसान रहेगा और मज़ा आएगा कैसे फॉर्मूले याद रखना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, बी क्यू वी की साइन थीटा साइन 90 है तो ये 1 बन गया। और दिस फोर्स इज ए, गोल घूम रहा है, इसका मतलब इसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो 1 वी गेट कैंसिल, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी निकालना है। चलो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, चलो यहाँ समझाते हैं। तो टाइम पीरियड पता है तो हम इसको निकालेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, और टाइम पीरियड के लिए होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी टर्म डायरेक्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले r निकालेंगे, 2πr। तो r निकालने के बाद r का वैल्यू निकालेंगे पहले, तो r का वैल्यू निकालने के बाद हमें ये सभी टर्म्स मिलेगा। सो द r इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, r इक्वल टू क्या आएगा, यम, ये q यहाँ से बच जाएगा, डिवाइड बाई बी क्यू। यम कितना है, 9 इंटू 10⁻31, ये वैल्यू दिया है। उसके बाद कौन है, v है, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7 प्लस 7 मीटर पर सेकंड में दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 6 इंटू 10⁻4 इंटू क्या क्या है फिर ये Q, दिस इज चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। सो द रेडियस आर इक्वल टू, ये कैलकुलेशन देखो तो ये 9 मैंने यहाँ लिखा इंटू 3 हो गया, और इंटू 10⁻31 प्लस 7 कितना आ जाएगा, यह आएगा 24। सो दिस 10⁻24। और यहाँ से जो टर्म है, यहाँ 6 इंटू 16, तो यहाँ से एक हो गया, ये 20 हो गया, 20 प्लस ये 24, तो नीचे से भी कितना आएगा, प्लस 24 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा चला जाएगा। सो आर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 3 2 6 और 9 और 16, इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी है 26 इंटू 10⁻2 मीटर, मतलब क्या आएगा 26 सेंटीमीटर। यह हो गया रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड या वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना है 2πr, गोल घूम रहा है, इसका मतलब सरकमफेरेंस, और वेलोसिटी कितना है v, वेलोसिटी से v। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, तो 1/t इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v डिवाइड बाई 2πr आएगा। v का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, v का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, और 2 इंटू 3.14 इंटू r कितना है 26 इंटू 10⁻2। और ये जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेशन के बाद ये आता है 2 इंटू 10⁶, या 2 मेगा
मेगाहर्ट्ज। कितना आएगा? 2 मेगाहर्ट्ज। और यहाँ देखो, फिर यहाँ पूछते हैं कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो। एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला? एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये मोशन में है तो ये इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, हाफ। यह मास कितना है? 9 × 10⁻31। वेलोसिटी कितना है? तो यहाँ लिखा है वेलोसिटी 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 उसका स्क्वायर। अगर ये डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आता है दिस इक्वल टू 40.15 × 10⁻17, और ये आता है जूल। दिस इज द एनर्जी इन ए जूल, अगर ये सिंप्लीफाई किया। लेकिन यहाँ पूछा है कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो एनर्जी यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इक्वल टू, ये निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे? 40.15 × 10⁻, कितना है? -17, ये हो गया जूल, डिवाइड बाई, इससे डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻19, तो एनर्जी आता है, ये नए डिवाइड करो तो ये आएगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है? 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस तरीके से यहाँ आएगा, यहाँ रहेगा, ये 5 रहेगा, दिस आल्सो ये 5 आएगा यहाँ, 40.5 × 10⁻17 जूल। तो ये भी एक आसान न्यूमेरिकल था जो टेक्स्ट बुक का था, जो एनसीईआरटी का। और अब यहाँ ये भी एक, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वो जो सीबीएसई में पूछा था। ये रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर साइज इज ए 4/10 सेंटीमीटर, ये 4 और 10 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर लूप है। दिस इज ए पी क्यू आर, और ये यस कैरीज दिस करंट इज ए 2 एम्पियर। कितना करंट? 2 एम्पियर इन ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर ऑफ ए कैरिंग द 5 एम्पियर करंट। इसके साइड में एक वायर है कैरिंग द 5 एम्पियर करंट, केप्ट नियर द लूप एज शोन। लूप से पहले लूप से 1 सेंटीमीटर दूर है, और दूसरा लूप से देखेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर दूर है। ओके, ये बात पता चला। तो if the loop and wire are the coplanar, एक ही प्लान में, they are in coplanar, so find the torque acting on the loop. Okay, then torque acting on the loop equal to torque acting on the loop क्या है? रेक्टेंगुलर साइज इतना, कैरीज द 2 एम्पियर करंट, और ये NIA B साइन ऑफ ए थीटा। ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप। ये क्या है? इसमें से एरिया, यहाँ भी एरिया दिया है, तो एरिया इसका क्या आता है? ये आता है, तो इसका एरिया भी दिया है, और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो दिया नहीं, जस्ट 1 n इक्वल टू हम 1 लेंगे, क्योंकि नो टर्न्स आर गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स इज ए सिंगल लूप। और एरिया फाइंड करना है तो एरिया इक्वल टू 4 × 10, और ये सेंटीमीटर का होगा ये स्क्वायर, तो ये हो गया 40 × 10⁻², सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर आएगा। कैसे करते पता है? अगर ये मीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 0.4 आएगा, और ये 0.1 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो और 40 देखो तो ये इतना वैल्यू आएगा ए का। तो इसमें हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट देन फाइंड द टॉर्क ऑन इट, दिस इज साइन थीटा। और दोनों एक ही प्लेन में है, अगर इको प्लानर है तो दिस इज एंगल बिटवीन देम, this is the angle between them is a 0 if this is a wire and this rectangle
rectangular loop is coplanar, then theta equal to 0. So torque equal to 0. Torque क्या आएगा 0. This is the answer of first question. क्योंकि both are in the plane, मतलब जैसे ये वायर अगर इस पेन के डायरेक्शन में अगर वायर जा रहा है और उसके साथ में ये प्लेन है, इसका मतलब बोथ आर दी कोप्लानर. तो ये जो प्लेन है तो इसका दोनों का जो थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन द बी एंड व्हाट इज द एंगल? एंगल इज ए theta is the angle between perpendicular to the plane of the loop and magnetic field. अगर ये इस तरीके से रहेगा और करंट ऊपर जा रहा है, समझ लो ये स्क्रीन के ऊपर आता है क्या करेक्ट? अगर ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये प्लेन इसके साथ में रेक्टेंगुलर प्लेन, ये हाथ ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, इस तरीके से साथ में रखा, ये दो साथ में रखा, थीटा क्या है? तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इनवर्ड रहेगा इस साइड में, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. और इसका जो थीटा है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है. तो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0. समझ में आया कि ये करंट ऊपर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगा, और ये प्लेन ऐसा रखो प्लानर रखा, दोनों एक ही प्लेन में है, और तो इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा इस तरीके से, दोनों इनवर्ड है, तो थीटा इक्वल टू 0. तो ये टॉर्क विल बी ए 0. अब दूसरी बात देखो यहाँ क्या लिखा है फिर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर. ये लूप के ऊपर दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर. तो यहाँ लूप क्लोज टू द ये वायर, फोर्स ऑन द क्लोजर साइड ऑफ द लूप, और यहाँ लिखते हैं दिस इज ए फोर्स ऑन ए क्लोजर साइड. कौन सा क्लोजर साइड? मैंने लिखा है PS ऑफ ए वायर. द फोर्स ऑन द क्लोजर साइड ऑफ ए लूप, नॉट ए वायर, क्लोजर साइड ऑफ ए लूप. किसके क्लोजर? वायर के. और क्लोजर साइड कौन सा है? PS. यहाँ से ये E और ये S. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? अगर ये कंडक्टर है और वो कैरिंग करंट करता है 5 एम्पियर, और दूसरा ये लूप का ये S और ये P है, दिस आल्सो कैरिंग द करंट 2 एम्पियर. तो यहाँ थियरी कौन सा अप्लाई करना है? टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, two parallel current carrying conductors in this carrying the current in the same direction, and there is a separation distance between this 1 centimeter. यहाँ दिखा है this is the 1 centimeter between the separation distance. तो ये अप्लाई करेंगे तो this is the F1 equal to V0 I1 I2, और ये डिवाइड बाई यहाँ आएगा 2 पाई और ये R. तो इतना ये आ गया, और इंटू क्या लेता है इससे इंटू द लेंथ L. हाँ, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. तो F इक्वल टू V0 कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, बराबर है, डिवाइड बाई ये 2 पाई हो गया, इंटू करंट कितना है इसका 5 और इसका 2, 5 इंटू 2, और इंटू लेंथ कितना है इसका? लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया, तो 10 सेंटीमीटर मीटर करेंगे 10⁻⁻2, तो मीटर में हो गया. बराबर समझ में आता है क्या? नहीं पता नहीं तुम लोगों को. R इक्वल टू, R क्या है? डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है? 10⁻1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2. इसको डिवाइड करो तो F इक्वल टू ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, बराबर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, इंटू ये 10 हो जाएगा, इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई कितना हो गया? 10⁻2. चलो कैसे भी करो, ये 10⁻2 कट गए, और यहाँ से फोर्स इक्वल टू ये आएगा 2 इंटू 10⁻, ये 100 और यहाँ से ये चला जाएगा, तो ये बिल्कुल 10⁻5. दिस इज ए नॉट टेस्ला, इट इज ए न्यूटन.
और हमने थ्योरी में पढ़ा था दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर करंट इन द सेम डायरेक्शन है दे विल बी अट्रैक्ट विथ ईच अदर। क्या करेगा? अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ईच अदर। ओके, देन दूसरा, द फोर्स ऑन longer side or force on the longer side, कौन सी longer side है? QR और RQ। अगर ये RQ का हम निकालेंगे अभी, ये भी आसान है। अगर इसको देखेंगे तो जैसे F2 मैं लिख रहा हूँ इसको, F2 इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R और इंटू यल। अब ये 4 पाई होता है इंटू 10⁻² कितना हो गया? -7 डिवाइड बाई 2 पाई। I1 का वैल्यू कितना है? I1 कितना है? ये 5 मतलब यहाँ समझ में आया कि दिस इज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग द करंट 5 एम्पियर, और इसका जो लॉन्गर साइड है वो यहाँ से करंट किया जाता है R और Q, और इसका करंट है 2 एम्पियर और इट इज ए अपोजिट डायरेक्शन में। और ये दोनों का डिस्टेंस देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर यहाँ से। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ I1 5 और ये कितना है? ये 2, और लेंथ कितना है? 10 है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² -2, ये मीटर में हो गया, डिवाइड बाय R मतलब ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? तो 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻², ये इसके साथ चला जाएगा, ये 5 के साथ चला गया, तो रिमेनिंग टर्म्स ये 20 और ये 2 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 इंटू दिस 20, बाकी कोई बचा है क्या? नहीं। तो ये 40 इंटू 10⁻7 या 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन। अब देखो, दिस विल बी ए रिपल्सिव, क्योंकि करंट इन ए अपोजिट डायरेक्शन, दिस विल बी ए फोर्स इज ए रिपल्सिव फोर्स। Force is this is the repulsive force. This will be a repulsive. ये फोर्स कैसे हो जाएगा? रिपेल करेगा। हाँ, the magnitude and direction of a force on the loop due to the current carrying conductor। ठीक है, ये हो गया दो साइड, ये साइड और ये साइड। अब इसका क्या रहेगा? ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये फोर्स अपवर्ड करेगा, ये डाउनवर्ड करेगा, और दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। इस तरीके से ये थ्योरी हो जाएगा। ओनली दिस फोर्सेस आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉइल 6 टर्न हैविंग 2000 टर्न्स एंड कैरिंग द करंट इतना एम्पियर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेट्यूड डायरेक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द कॉइल एक्सपीरियंस and which orientation the coil torque is 0? What is the stable and unstable equilibrium? This is the question. Again, this question is the important question. We can do it. The rectangular coil of a side area of the coil equal to 8 into 6, दोनों सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 48 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया में किया। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स इज ए 2000, और करंट I इज इक्वल टू 200 मिली एम्पियर। इसका मतलब हो गया 200 इंटू 10⁻⁻3, या हम लिखेंगे इसको 0.2 एम्पियर। उसके बाद लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला।
डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, बी कहाँ है, डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, द बी का डायरेक्शन हो गया। अब बी का डायरेक्शन हो गया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, फॉर द मैक्सिमम टॉर्क so for the maximum torque, so this torque to equal to कौन है, ये कॉइल है, और कॉइल का टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन ऑफ ए थीटा, थीटा इक्वल टू 90 for the T is a maximum. So torque is a maximum equal to N I B A. N कितना है 2000, I कितना है, this is a 0.2, magnetic field कितना है, this is also 0.2 टेस्ला, और एरिया कितना है 48 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको सबको सिंप्लीफाई, 4 2 8, 8 2 16, दिस इज 16, और ये 3 जीरो अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये 2 डेसिमल हट गया, इसीलिए यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा 160 आएगा, इंटू क्या है 48 इंटू 10⁻⁴। ये तो चलो ये मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 48, और एक जीरो इसका कैंसिल करते हैं तो ये 10 आएगा -3। दिस इज ये क्या है, दिस इज द टॉर्क, और तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या आएगा इसका टॉर्क, दिस यूनिट इज ए न्यूटन मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी है 0.348 न्यूटन मीटर। This is the maximum torque, yeah, torque maximum. The torque on the coil is J, and then torque on the this is a, what is the maximum torque? Which orientation does it experience the more maximum torque? The torque maximum when x-axis lies in the plane of the coil. मतलब जब ये एक्चुअली मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो अगर ये प्लेन ऑफ कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा कितना चाहिए 90, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब द प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड along the x axis, this is the angle 90 degree, and means plane of the coil is along the x axis, then it will be a maximum torque। कुछ समझ में आया? अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखेंगे तो y डायरेक्शन में आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है along the x डायरेक्शन। जब ये y डायरेक्शन और y एक्सिस और x एक्सिस का डायरेक्शन कितना होगा 90 डिग्री, तभी ये क्या आएगा, मैक्सिमम टॉर्क। दिस टॉर्क इज max when plane of coil along x axis, तब ये मैक्सिमम आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या लिखा है, फोर्स फॉर विच ओरिएंटेशंस द कॉइल हैज अ टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो मतलब क्या आना चाहिए, थीटा जीरो। थीटा जीरो कब आएगा, व्हेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो कैसा रहेगा, तो व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज ए परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर का थीटा जीरो आएगा, टॉर्क विल बी ए जीरो। when it is a when its equilibrium is a stable and when it is a unstable. For the stable equilibrium, when magnetic moment and B they are in a parallel, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m
this equal to NIA, this value, and B, they are parallel. Or unstable equilibrium, they are anti-parallel. M and B are anti-parallel. Then unstable equilibrium. Unstable equilibrium. The stable equilibrium and unstable equilibrium, इसका मतलब ये होता है कि when it will be a stable or unstable equilibrium. Okay, this is a simple question. ये भी the rectangular coil of area 5 into 10 raised to minus 4 meter square, 60 turn coil area, चलो जल्दी लिखते हैं इसका, 5 into 10 raised to minus 4 meter square, number of turns 60, और it is a pivoted about the one of its vertical side, coil radial horizontal magnetic field G, it is a 90 Gauss that magnetic field, और ये कैसा है, रेडियल है. इससे क्या पता चलता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मीन्स फील्ड. ओके, इसका मीनिंग दिया. व्हाट इज द टॉरिजनल कांस्टेंट, के का वैल्यू फाइंड करना है. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क के अल्फा. तो हमें साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, रेडियल है. तो NIAB इक्वल टू के अल्फा, के इक्वल टू NIAB डिवाइड बाई अल्फा. अब यहाँ नंबर ऑफ टर्न 60 है, आई कितना है, तो करंट है, इसमें से करंट दिया है क्या, 0.2 एम्पियर. एरिया कितना दिया है, तो एरिया दिया 5 into 10 raised to minus 4, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो 90 गॉस है. तो 90 गॉस मतलब 90 into 10 raised to minus 4 करेंगे तो ये टेस्ला में हो जाता है. अगर गॉस का टेस्ला में करना है तो 10 raised to minus 4, 1 गॉस इक्वल टू 10 raised to minus 4 टेस्ला, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया. डिवाइड बाई एंगल कितना है, 18, कितना दिया है, दिस है 18 डिग्री, एंगुलर डिफ्लेक्शन 18. सिंप्लीफाई करो इसको. तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 60 into 2, तो ये 120 और एक डेसिमल पॉइंट रखा, तो ये इंटू 5 into 90 into 10 raised to हो गया -8 डिवाइड बाई 18. इसमें से 9 2 18 हो जाएगा, 2 का ये 6 हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स लिखा 6 5 और ये 10, इसका यहाँ 10 बचेगा, into 10 raised to -8. This is the value of a k. So k equal to 5 6 30, 5 6 30 into 10 raised to, ये 10 ये यहाँ से जाएगा -7. अब इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस के. अगर के का यूनिट निकालना है तो हम भूल गए, यूनिट क्या है पता नहीं है, तो हम इसका यूनिट फाइंड आउट करेंगे. अब देखो यहाँ के का ही यूनिट, के इक्वल टू NIAB डिवाइड बाई अल्फा. n क्या है, n इज ए नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर है ये करंट क्या है, एम्पियर, और एरिया मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखो मैं, इसको लिखेंगे टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला डिवाइड बाय ये आएगा डिग्री. और तो ये ऐसा ही लिख सकते हैं, दिस इज ए एम्पियर मीटर स्क्वायर टेस्ला और पर डिग्री. लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसको, हमें पता है एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी होता है. सो बी टेस्ट, ओके सॉरी ये क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ओके टेस्ला. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू वी है. एफ या न्यूटन में क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है. आई का क्या एम्पियर, टी का सेकंड, और वोल्ट ये दिस इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. तो सेकंड चला जाएगा, तो इसका बनेगा
न्यूटन पर एम्पियर और ये पर मीटर। किसका हो गया ये हो गया इन प्लेस ऑफ द टेस्ला। यहाँ लिखते हैं इन प्लेस ऑफ द टेस्ला वी कैन रखो एम्पियर मीटर स्क्वायर और टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर डिवाइड बाय ये डिग्री। अब यहाँ देखो जैसे एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर एक इसमें से हो गया, तो ये यूनिट यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ये हो गया मीटर बराबर है न्यूटन मीटर, और ये पर डिग्री भी लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से यूनिट आता है के का वैल्यू, ये डिग्री लिखो, ये दिस आल्सो करेक्ट, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया, इसको शॉर्ट करना है तो इस तरीके से करते हैं न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो ये एक आसान क्वेश्चन था ये भी। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक क्वेश्चन करना है क्या? ओके, ये आगे के वीडियो लेक्चर में ले लूँगा क्योंकि अभी ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं आगे के वीडियो, इसमें एक न्यूमेरिकल का मैं वीडियो बना रहा हूँ, सम टेक्स्ट बुक रिलेटेड बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, और वो अगला वीडियो रहेगा। ये क्वेश्चन को मैं उसमें शिफ्ट करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तुम भी थक गए होंगे। तब तक के लिए ये सब न्यूमेरिकल्स अपना कॉपी में लिखो, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए गुड डे।